You sometimes find that difficult. This is why so at that time you need the corporeal companion. What do you do when your head is filled with many things? You need someone to whom you can relate these things. So those souls who are faithful to only one, so those who are faithful to only one, they don't accumulate. So they do not accumulate any burden in their head so that they have to relate it to others or share it with others. So on the one hand, you please the Father very much. You always tell Baba, Baba, you are the one who is always with me. Baba is always with me. Baba is my companion. So where does he go at that time when you look for other person to share your problem? So is that the Father goes away or do you step away? So if he is every moment with you, so is it like he's only for 6 to 8 hours with you? What was the promise you made? That you are with him, that you will remain with him, and that you will go back home with him. So this is the promise, right? This is firm, right? Say yes. So everybody is saying yes, Baba. So if someone has any other opinion about this, so they can raise their hands. So for some, it may be such that the companionship is sometimes, not all the time. It's not for forever, but sometimes. Is there anyone like that? There is no one like that. So you have promised with Father Brahma that you will play your part. Say that you will play your part throughout the whole cycle with him. So you have made this promise, right? So as you have made such a promise, so why do you still need a special companion in the physical form? So why do you need a special companion?
Om Shanti. Welcome to Vyakti Parivar. Today's day 16. Divine Sanskar, Divine World. Devi Sanskar, Devi Sansar. Ek Vrata. Faithful to one. Now we will listen to Moini Didi. Oh, Shanti, everyone. Everyone is okay. Very good. Yes. Whatever we listen from Baba, then we look at our own personal life and kind of reflect that what had been my experience and whatever Baba is saying, how much I had been able to apply in my life. You know, I can say, I had been with Baba for 60 years, right? Almost my whole life. I was a teenager when I came to Baba. And since childhood, I had lot of love for God. I believe that there is a divine power, and also within my own self, I felt lot of divinity. And then I thought that maybe this inner divinity is connected with one who is supreme, one who is ever divine. So this inner connection with God was always there. We sing the prayer, no? Thou art mother and father every night. We didn't know about soul. I knew about तो had a very मैं deep feelings आत्मा के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन मेरे को my roots are in लेकिन मेरी जो अंदर की जो भी मूल था वो जैसे भगवान के साथ जुड़ा हुआ था। and Baba says that I have come to make you deities because you were deities. And तो I knew भगवान ने lot जैसे of मुझे कहा कि आप, मैं उस समय बहुत सारे देवी देवताओं को पूजती थी, तो बहुत हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर था और बहुत बड़े बड़ी मूर्तियां थी। myself, whole family, we used to worship. तो हम पूरा परिवार बैठ के पूजा किया करते थे। Inner faith in God. तो ये जो परमात्मा में विश्वास था, But then there was no power, right? लेकिन There was विश्वास only तो love, था, there was भक्ति भी only करते faith. थे, लेकिन शक्ति नहीं थी। शक्ति कहाँ I से मिले? believe there was प्यार something था, supernatural. निश्चय था, लेकिन शक्ति नहीं थी। तो मुझे याद है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी थी, एक बार दो बार ऐसा हुआ There was a situation of war. कि ऐसी युद्ध जैसी You know परिस्थिति that थी। in war, you तो feel like तुम you're going जानते हैं somewhere. ना कि जैसे जब युद्ध होता है तो आपको कहीं ऐसे जाना होता है ना, No, you आपको look कहीं into जैसे different छुपना है, तो territories. हर घर में तो ऐसा नहीं होता, तो कुछ भी आपको अपनी सुरक्षा करनी है किसी भी रूप में। So people were very scared, right? As तो soon as they लोग जैसे बहुत they डर hear गए थे। anything, तो जैसे ही वो कुछ ऐसे सुनते थे incidents about कि कोई ऊपर something आवाज आ happening रही in है, India जहाजों or की आवाज आ रही है, फाइटर जेट की आवाज आ रही people है, will be तो very scared. लोग क्या करते थे, बहुत डर जाते थे। And I still remember तो that मुझे अभी भी याद है वो that समय within the family I had one कि younger sister. परिवार में हमारी मेरी एक छोटी So बहन थी। I was like, तो I had मैं no fear. मुझे मेरे अंदर कोई डर नहीं So था, I सब डर had जाते थे, मैं my बिल्कुल नहीं sister डरती थी। help her and others. तो मैं उसको भी Nothing will जैसे happen to सहारा you. देती God थी और is with दूसरों you. को बोलती थी कुछ नहीं होगा ना, भगवान So है, now I भगवान हमारा realize साथी that है। strength and तो courage अभी मैं समझती हूँ कि वो जो came शक्ति थी, वो हिम्मत थी, in वो God. कहाँ से आ रही थी? वो एक जो And you निश्चय था don't मुझे feel it in परमात्मा others, में, right? उससे था। तो आप कैसे परमात्मा की मदद को महसूस करोगे? So
तो और भी ऐसे समय थे, जैसे अभी जैसे कोविड आया, ये वायरस आया, तो ऐसे इन्फ्लुएंजा वायरस आया था, 1960 की बात है, और हर कोई घर में बीमार हो गया। तो एक को फ्लू होगा तो सबको हो जाएगा। तो अभी तो उसके फ्लू शॉट्स लगते हैं ना, उस समय ऐसे शॉट्स नहीं थे। तो जैसे कोविड का भी बाद में आया ना, तो ऐसे ही तब इन्फ्लुएंजा की भी वैक्सीन बाद में आई थी। तो हमारा पूरा जो हमारे पड़ोसी थे सब बीमार हो गए, तो मैं बीमार नहीं हुई। तो मैंने क्या करती थी, बहुत चाय बनाती थी बहुत सारी, और ब्रेड, और सबको देती थी, सबको खिलाती थी। तो मेरे जीवन में मैंने हमेशा यह महसूस किया कि परमात्मा की कहीं ना कहीं उपस्थिति है। और गहराई में मुझे हमेशा लगता था कि दूसरों की मदद करूं, हर एक की मदद करूं, बहुत जैसे बहुत पुण्य आत्मा की तरह था। और मेरे परिवार भी ऐसे ही था। तो आज मैं इसके बारे में सोच रही थी कि ये जो परमात्मा के साथ हमारा संबंध होता है, ये हमेशा मेरा तो था, मेरा परमात्मा के साथ। तो जब मैं बाबा के पास भी आई, तो परमात्मा जो बाबा की मुझे पहचान मिली कि कौन है, जो मेरा बाप, टीचर, सतगुरु, सखा, गाइड, सब कुछ है। और वो जो हमको तीसरा नेत्र देता है ज्ञान का। और जिस तरह से बाबा हमको बताते हैं गति, सदगति, और बाबा बताते गति, हम अपने घर कैसे जाएंगे, सदगति कैसे हो, जब हम अपनी नई यात्रा शुरू करते हैं, जीवन मुक्ति की यात्रा जो शुरू करते हैं सतयुग में। तो बहुत सारे लोग हैं, जब हम बात करते हैं सतयुग की, कि सतयुग में कोई दुख नहीं होगा, तो जब वो कहते हैं कि अगर वहां पे सुख दुख नहीं होगा, तो आप सुख को एंजॉय कैसे करेंगे। तो वो ये मानते हैं कि दुख तो हमेशा होगा, तभी सुख की अनुभूति कर पाएंगे। पर जब मैंने ये सुना था, और मैं समझती हूँ आप लोगों में से भी कईयों ने जब ये सुना होगा कि सतयुग में सिर्फ सुख होगा, वहां दुख नहीं होगा, किसी भी रूप की चिंता नहीं होगी, दुख नहीं होगा। तो मैं तो इस बात से बिल्कुल सहमत हो गई, और मुझे लगा हाँ ऐसा ही होना चाहिए ना। अगर हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान कोई रचना रच रहे हैं, तो वहां पे दुख कैसे हो सकता है, वहां चिंता कैसे हो सकती है, जो भगवान की रचना है। तो ये तो बाद में जब हम देह भान में आए, और फिर देह भान में आने से दुख हुआ, पाप कर्म किए, विकर्म किए, तो फिर वहां से दुख शुरू हो गया, चिंता शुरू हो गई। तो मुझे ये बातें बिल्कुल, मैं सहमत हो गई थी एक बार में ही। तो शुरुआत तो जरूर सुख से ही होगी। तो सतयुग माना दिव्य दुनिया, तो हम सबके दिव्य संस्कार होंगे, दिव्य होगी वो दुनिया में, दिव्यता होगी। तो इस बात में मुझे बहुत ही निश्चय था, और मैं समझती हूँ कि आप सब भी, आप में से भी कईयों को भी ये चीज ऐसे होगी ना, कि हम क्या थे, क्या बन रहे हैं। तो इस बात में एकदम से निश्चय आया होगा ना। तो हमने कैसे अपनी दिव्यता को खो दिया था, अभी हमको दोबारा उसको क्लेम करना है। तो मैं तो इस बात में बहुत विश्वास करती हूँ कि भगवान मेरे लिए क्या कर सकता है, कि भाग्य पर भी मैं हमेशा विश्वास करती हूँ कि हमारे श्रेष्ठ कर्मों से हमारा भाग्य श्रेष्ठ बनता है। और उसके साथ साथ हमें परमात्मा की दुआएं भी चाहिए, जिससे कि हम जीवन में भाग्य को अनुभव कर सकें, कि सफलता हो या सिद्धि करनी हो किसी जीवन में, किसी भी बात की सिद्धि के लिए, किसी भी चीज के लिए हमें समझदार बनना है कि हमारा पूरा जीवन कैसा हो। जैसे आज की दुनिया में किसी भी चीज की जो
कोई भी विकारों का, जैसे लालच है या मोह है या किसी भी उसके उसमें नहीं आना, उससे मुक्त रहना है। इसीलिए तो बाबा हमको ज्ञान देते हैं ना, और हम समझदार बनते हैं ताकि हम अपना खुद का ध्यान रख सकें। तो जब बाबा कहते हैं ना कि भगवान को राजी करना है, जब हमारी बाबा के साथ हमारी वफादारी, हमारा निश्चय, हमारी बाबा से आज्ञाकारिता, हमारी सेवा, हमारा बुद्धि का योग सब एक के लिए होगा। और मैं हमेशा ये महसूस करती हूँ और निश्चय रखती हूँ, और मैं समझती हूँ आप सब भी ऐसा समझते होंगे, कि जब भी किसी को ये महसूस होता है अंदर में कि अंदर कोई बोझ है, तो सिर्फ आत्म अभिमानी बन जाओ और बाबा को याद करो। तो आज कई बार दिन में मैंने ये अभ्यास किया कि सिर्फ मैं एक बिंदु हूँ, एक बिंदु, ज्योति बिंदु। तो उस ज्योति बिंदु समझते ही क्या होता है कि हम न्यारे हो जाते हैं शरीर से। और दूसरी बात बाबा, और तीसरा ड्रामा, तो बाबा जो 3 तिलक बोलते हैं, आज मैं वो तीनों तिलक आज यूज कर रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो जैसे बाबा हमेशा कहते हैं ना, 0 लिखो, बिंदु लिखो, तो उसमें ज्यादा समय नहीं लगता बिंदु लगाने में। तो एक के साथ हमारा जो संबंध है, एक के साथ जो हमारा एक व्रता है हम, तो मैं समझती हूँ कई बार क्या होता है, शुरू में क्या होता है, ब्राह्मण जीवन के आदि में बाबा हमको बहुत सारी चीजें बताती हैं, ये करो, सेवा करो, धारणा करो। तो उसमें निश्चय तो होता है, लेकिन इतनी शक्ति नहीं जमा हुई होती। तो कमजोरी की वजह से हम समझते हैं कि अभी नहीं हो पाएगा, अभी नहीं हो पाएगा। पर बाबा तो कभी हमारी कमजोरियों को नहीं देखते, क्योंकि बाबा जानते हैं कि आत्मा कर लेगी। और ये सच है, क्योंकि फिर हमें ज्यादा समझ आएगी, ज्यादा शक्ति मिलेगी, और स्पष्टता ज्यादा होगी। हमारा निश्चय भी और शक्तिशाली होगा। तो फिर हम कर पाएंगे जो बाबा चाहते हैं आत्मा से कराना, वो हम कर पाएंगे। हम जानते हैं कि बाबा करण करावनहार है, तो मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, बाबा कराने वाला है। लेकिन बाबा ऐसे तो नहीं करा सकता जब तक हम तैयार ना होवे। तो अगर अंदर से हम सिर्फ सोच रहे हो कि हम हमसे होगा कि नहीं होगा, हम पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो अगर हमारा ही बुद्धि में संशय होगा, तो बाबा कैसे मदद करेगा। तो अगर बाबा को हमारी मदद करनी है, हमको ज्यादा स्थिर रहना है, शक्तिशाली बनना है, तो जो भी बाबा कहते हैं उस पर हमें निश्चय करना है, वो हम कर सकें। तो अगर हम कहें कि हाँ ये हम कर सकते, तो बाबा हमारे को शक्ति देगा वो करने के लिए। तो जब हम कहेंगे बाबा हाँ हम तैयार हैं, और जब कोई परिस्थिति हो या कोई दुविधा हो, तब नहीं, लेकिन हमें शांत स्वरूप होना है, हमें बहुत शांति का अनुभव करना है। तो फिर बाबा मुझे निमित्त बनाएगा। लेकिन अगर मैं खुद ही अपसेट हूँ, खुद ही सुख को नहीं अनुभव कर रही, खुद ही खुश नहीं हूँ, तो बाबा कहेगा ना ये इंस्ट्रूमेंट तो टूटा हुआ है, इससे कैसे हम करें। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप को याद दिलाओ कि मैं निमित्त हूँ, और मुझे याद रखना है एकांत, एक व्रता, और उसमें निरंतर हो।
Baba can use me. So तो फिर we बाबा decide मुझे that यूज there is करेगा। only one Baba. तो हम ये निश्चय And करते हैं then ना कि एक we बाबा feel that है yoga should be और with one Baba. मेरी बुद्धि का योग सिर्फ एक बाबा के साथ लगा रहे। But still if it wanders, लेकिन फिर भी connected with others or अगर वो दूसरों के साथ, हम दूसरों को याद करते रहे, दूसरों से सहारा लेते रहे, but internally deeply पर as we अंदर में गहराई से जैसे जैसे हम अपनी चेकिंग करेंगे ना, हमारी उन्नति होगी। हम देखेंगे मेरा निश्चय, मेरी वफादारी, मेरा सिर्फ एक बाबा है। तो इसका अर्थ है कि मैं जानती हूँ कि बाबा दिलाराम है। तो बाबा दिलाराम है तो मुझे बाबा से बात करनी है। So even if we have talk, तो अगर conversation हमको किसी से बात करने का मन होता है ना, to lighten our mind or कि अपने मन को हल्का करना है या अपने मन को कोई और दिशा देनी है, तो हम बात करने का अगर मन भी होता है I know that तो क्या Baba करना है, is बाबा से बात करनी है ना। so तो Baba bless तो us जो भी हम बाबा से फिर मिलेगा हमको, वो क्या only होगा, blessings दुआएं। in the sense of तो ये नहीं सिर्फ कि confidence and हल्कापन आएगा, understanding. नहीं, हमें बाबा की दुआएं भी We मिलेंगी। won't get blessings from a human soul, but तो ऐसे नहीं कि हमें किसी मनुष्य आत्मा से दुआएं मिलेंगी, and then we नहीं, won't get भगवान से। blessings तो बाबा from हमको any शुभ other भावना human भी being. देगा। तो बाबा, दुनिया में तो कोई But हमें रहम Baba's love for those रहम souls से देखेगा, लेकिन बाबा का जो प्यार है is आत्मा के very, लिए, very important to feel. वो तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है उसे And I पाना। noticed through the day और मैं that समझती हूँ Baba is पूरे not दिन में, visible तो बाबा normally. ऐसे तो नहीं दिखाई देता कि ओ बाबा But when ये रहा। things get लेकिन जैसे happening, काम होता है, चीजें very, होती very जाती हैं, subtly, बहुत slowly, सूक्ष्म रूप से, गुप्त रूप से सब that the कुछ अच्छे से presence हो of जाता Baba. है, तो हम बाबा की उपस्थिति को महसूस करते हैं। Today I was thinking without तो Baba's आज मैं सोच company, रही without थी friends, कि बाबा की कंपनी के बिना, बाबा के साथ के बिना हम तो कुछ भी नहीं कर and सकते ना। especially और when विशेष रूप Baba से जब says बाबा कहते हैं to, कि आपको सेवा करनी है, we think it's easy, right? तो हम समझते हैं कि ये आसान है, मैसेज देना, ज्ञान देना। But if you have to truly serve लेकिन Baba, अगर हमको सच में किसी की सेवा we should करनी है, remember Baba, right? तो We हमको should बाबा को याद रखना है, बाबा को repeat बीच that में लाना है, बाबा की cycle उपस्थिति over को and over. सामने लाना है आत्मा के लिए। So as much I तो think जितना about it, ज्यादा हम ये इस पे that चिंतन करते हैं, तो essential हमको truth महसूस होता है कि जो एक व्रता is होना reflected है, and within us. तो एक व्रता ये हमारे अंदर है। Deeply we believe that there is तो only one गहराई Baba. में हम जानते हैं कि सिर्फ एक But है, now, लेकिन अभी, how consistent that is. लेकिन उसमें हम कितना निरंतरता से उसको करते हैं, सदा ऐसी एक व्रता की स्थिति रहे, वो कैसे होगा। Challenging चाहे आप कहीं situations, भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, दुविधा हो, Baba लेकिन हम जानते हो कि बाबा है, बाबा है and वहां पे, anytime बाबा struggle or उपस्थित opportunity है। arises, और किसी तरह की he comes to सहयोग my की assistance. जरूरत होगी ना, तो सही व्यक्ति सही समय पर आ जाएगा और हमको मदद मिल जाएगी। तो Baba मैं is there हमेशा for कहती us. हूँ कि Baba बाबा does this for us. ये कर दो हमारे लिए, ये कर दो। अगर हम ये कहते रहे बाबा को, All of you can think of तो so many आप इस पे सब times in your life चिंतन करो। आपके where जीवन you में भी felt बहुत so सारे ऐसे different अनुभव from होंगे ना, जो कई चीजें ऐसे लगता है कितनी this यथार्थ रीति से beautiful हो presence गई। of तो Baba. हम जानते हैं ये बाबा की So this is उपस्थिति से होता surfacing है, in my जैसे mind. कई चीजें हमारे जीवन में हो जाती हैं। Is Baba has bestowed me, तो Baba has बाबा ने given me. ये किया है मेरे लिए, बाबा ने So दिया है deeply मुझे। the तो गहराई presence of में, Baba अंदर में जो भी महिमा है वो सिर्फ बाबा के लिए। पर surprises जैसे मैंने and कहा ना visits us. कि सही समय पर सही व्यक्ति So आ when जाएंगे, they become cooperative, और फिर they जब वो will help आएंगे you. तो फिर वो So हमें we सेवा thank करेंगे। Baba तो फिर हम उनको, फिर हम सोचते हैं ना, बाबा आपने कर दिया, ये बाबा without ने you ये this could संभव not कर दिया, happen. बाबा के किए बिना ये हो नहीं सकता था। So at every step in तो our हर life, कदम पर हमारे जीवन में there is this gratitude, हमें remembrance, ये devotion.
बाबा से आभार की जो भावना है और बाबा की उपस्थिति को महसूस करने की जो भावना है और बाबा से हर संबंध को अनुभव करने की जो भावना है, बाबा को मैं हमेशा याद करती हूँ जैसे बाबा मेरा गाइड है। तो ऐसे हो सकता है कि हमारे कई कई हैं जो सखा हो, लेकिन जो सच्चा दोस्त है, जो मेरे दिल की भावना, वो सिर्फ मैं बाबा के साथ ही शेयर करती हूँ। तो बाबा जैसे हमारा ध्यान रखते हैं। फिर अगर हम बाबा को छोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है, प्रकृति भी आपकी मदद करती है। हर चीज जो हमारे चारों तरफ है वो महसूस होता है कि ये सब हमारे फेवर में है। और कई बार ऐसी इस परिस्थितियां आती हैं जो जैसे कोई दुविधा हो, तो उसमें क्यों वो जरूरी है हमें बाबा को साथ रखना, क्योंकि उस समय बाबा हमको शक्ति देते हैं कि हाँ हम ये कर सकते हैं। तो कैसे मैं बाबा से शक्तियां लूं, कैसे बाबा हर चीज को संभव कर देते हैं। तो अपने मन की स्थिति को देखें। तो बाबा कहते हैं आपको तो बिल्कुल बेफिक्र बनना है, मैं तुम्हारी जिम्मेवारी लेता हूँ। तो मैं समझती हूँ कि हम सबके कई अनुभव होंगे ना जीवन में जहां हमने ऐसे महसूस किया होगा कि ये बाबा की वजह से संभव हो गया। तो बाबा से जो शक्ति मिलती है, जो सहारा मिलता है, जो सहयोग मिलता है, तो बाबा कहते हैं सबके लिए प्यार। तो आपने एक कहानी सुनी होगी ना, कि एक राजा रोज सबको जिसको जो चाहिए होता था, जिसको जो भी जरूरत होती थी उसको देता था। तो एक व्यक्ति आया और तब राजा सब कुछ अपना दान वाला समय खत्म हो गया था और वो बैठ के अपनी पूजा कर रहा था। तो फिर वो व्यक्ति आया और उसको देख के चला गया। तो वो उसने बोला कि राजा को बोला कि अरे मैं आपसे क्या मांगू, आप तो खुद किसी और से मांग रहे हो, तो जिससे आप मांग रहे हो क्यों नहीं मैं सीधा उसके पास ही जाऊं, मुझे आपसे क्यों लेना है। अगर मुझे आपसे लेना है और आप किसी और से मांग रहे हो तो क्यों नहीं मैं सीधा मांगू। तो हमको भी अगर किसी और से कुछ चाहिए तो क्यों नहीं हम सीधा बाबा से ले लें। तो वैसे हम बड़ा परिवार भी हैं, रूहानी अलौकिक परिवार है हमारा, तो पूरा विश्व भी तो हमारा परिवार है। तो हमें सही समय पर सही व्यक्ति यथार्थ मदद करने आ जाता है, लेकिन वो बाबा कराता है। लेकिन अंदर में क्या हो कि मेरा जो संबंध है वो एक बाबा के साथ और किसी के साथ नहीं, योग सिर्फ बाबा के साथ हो। तो ये है एक व्रता। तो मैं अपने पूरे जीवन को देखती हूँ तो पूरी मेरे रूहानी जीवन एक व्रता है, एक व्रता। तो कई बार कई लोग इस चीज को देख के बहुत उनको वंडर लगता है कि कैसे बाबा का परिवार चलता है, कैसे यज्ञ चलता है। हम जानते हैं ये बाबा कर रहा है, लेकिन वो तो नहीं जानते कि ये बाबा कर रहा है। तो वो पूछते हैं आप कैसे कर लेते हो ये सब। तो ये जो शब्द है एक व्रता, इसके ऊपर आप और भी चिंतन करो। और मैं समझती हूँ कि आप बहुत सुंदर अनुभवों को अनुभव भी करेंगे और आपको हुए भी होंगे। अच्छा, ओम शांति। Om Shanti. ओम Welcome. शांति, स्वागत है आपका अव्यक्ति यात्रा में। When it hears the truth.
आत्मा तब नाचती है जब सत्य को सुनती है, तो सच तो बिठो नाच। तो ऐसे कहा जाता है कि जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो सब गोप गोपियां आ जाते थे नशे में। रचाए साथ तुम्हारे, रास रचाए साथ तुम्हारे, झूम झूम दिल ये गाए, हो झूम झूम दिल ये गाए। और शंकर के लिए भी बाबा का भी और शंकर कुछ फायदा नहीं है, कोई भी साक्षात्कार में कुछ भी फायदा नहीं है, साक्षात्कार है नहीं। अच्छा, अभी तुमको साक्षात्कार भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होते हैं, ऐसे नहीं समझो नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। देवियों का फलाने का जिस जिसकी जो जो पूजन करते हैं और नवधा भक्ति करते हैं, नवधा का जैसे तीव्र भक्ति करते हैं, उनको साक्षात्कार होते हैं, पर उनको मन में कोई फायदा तो है नहीं कुछ भी। अल्पकाल क्षण भंगुर का सुख मिलता है, जैसे दिल उनकी खुश होती है, बाकी कुछ पाना नहीं होता है कुछ। अच्छा, यहाँ जो साक्षात्कार होते हैं वो है पाने के लिए। मामा ने समझा दिया, अक्षर करके साक्षात्कार होगा ब्रह्मा का, कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का, और किसका साक्षात्कार होगा। तो उसको साक्षात्कार कहे कि तुमको जो साक्षात्कार होते हैं वो पुरुषार्थ करे पवित्र जगत, और तो ये बनने का है, एम एंड ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होते हैं। वहाँ कोई एम एंड ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार नहीं है कि बस ये हमको बनना है और बन सकते हैं, नहीं, कोई भी नहीं बनते। तुम बच्चों को कृष्ण का साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में बहुत होते हैं, पर तुम कोई कृष्णपुरी में जा तो ही सकते हो ना, चाहते हो हमको दीदार हो तो हो जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो यहाँ तो मेहनत की बात है नहीं, यहाँ तो साक्षात्कार तो वो पाई पाई साक्षात्कार, वो अखबार में पढ़ते थे, हाँ, कुल्फी, एक पैसे पैसे कुल्फी, यानी साक्षात्कार को वो कुल्फी कहते थे। हाँ, तो क्या हुआ, बाबा ने समझाया था ना, बच्चियां वहाँ स्कूल भी अपने थे, बच्चे बच्चियां बहुत पढ़ते थे, सब साक्षात्कार में जाते थे कृष्ण के। बच्चे तो राजी उसमें होते हैं, छोटा कृष्ण, उनसे हम खेले तो खेलते रहते थे बस। तो अल्पकाल खेल है नहीं, बस अभी है थोड़ी यहाँ बैठे हुए, भाग गए, कोई मर गए, कोई कहाँ चले गए। यहाँ भी बहुतों को साक्षात्कार होते थे, ढेरों को आए नहीं, मर गए कोई। तो यह है साक्षात्कार होते ही है पुरुषार्थ के लिए, कि ये तुमको पुरुषार्थ कर करके ये तुमको बनना है। तो कृष्ण को तो भी साक्षात्कार होते हैं, और जो राधे का भी जो भगत होते हैं, तो यहाँ जाओ वृंदावन के तरफ में, तो जिधर देखो तो राधे 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 राधे, तो सच पचते उनको ये देखेंगे, उनको जैसे राधे देखने में आती है। तो साक्षात्कार होते हैं, पीछे ऐसे नहीं जो राधे ही देखते रहते हैं, नहीं, साक्षात्कार हो ना, तो सब राधे 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 ऐसे भी करते रहते हैं। परंतु कोई राधे बन तो नहीं सकते हैं, तुम तो बन सकते हो ना बच्चे, पढ़ाई से। तुम यहाँ सब कुछ बाप आए हुए नहीं, वो तुमको ये साक्षात्कार, रियल साक्षात्कार जो होते हैं उनकी समझाई देते हैं। अगर उनको रॉन्ग साक्षात्कार होते तो बोलते हैं ये रॉन्ग साक्षात्कार है तुम्हारा, इनसे कुछ बनने का नहीं है, तुमको बनने का यहाँ बाबा आए ही है तुमको आदि सनातन देवी देवता धर्म का वहां कहेंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, देवी देवता धर्म में ट्रांसफर करने। तो क्योंकि ज्ञान है, भक्ति मार्ग में ज्ञान तो होता ही नहीं, जरा भी नहीं, शास्त्र पढ़ना कोई ज्ञान नहीं है, वो उसको ज्ञान कहते हैं। परंतु बाप कहेंगे नहीं, ज्ञान तो है एक में, ज्ञान से सदगति हो जाती है। शास्त्र पढ़ते हैं बच्चे इतने, कोई सदगति थोड़ी मिलती है। तो सदगति माना ही सतयुग में जाना, दुर्गति माना ही कलयुग में होना।
तो तुम सदगति में जाते हो, पीछे तुमको मालूम है कि हमको दुर्गति में भी जाना है। कब जाना है सो भी तुम जानते हो अच्छी तरह से। मिली ऐसी खुशी थी ना पहले, आई ऐसी कभी ना बाहर। मिले जब से हमें हो बाबा, पाए जब से तेरा प्यार ही प्यार। मिली ऐसी खुशी थी ना पहले, आई ऐसी कभी ना बाहर। मिले जब से हमें हो बाबा, पाए जब से तेरा प्यार ही प्यार। मिली ऐसी खुशी थी ना पहले। मुझे से गिरने बच्चों पे तुम्हारे बाप और दादा का दिलो जान से गर्लफ्रेंड से याद गुड नाइट। तुम्हारे बच्चों पे तुम्हारे बाप की नमस्ते।